Hello students, I hope you all are fine and are doing well with your studies. Again, don't waste your time. Be regular with the videos and try to understand the concepts. Now, in our previous video, we are dealing with the topic projectile given angular projection. In our previous video, we are going to continue with the same topic because some cases are left with them. Now, the next important term is maximum height. कि एक ऑब्जेक्ट मेरा एक पॉइंट से जब उसको एंगुलर प्रोजेक्शन दिया जाता है तो मैक्सिमम हाइट वो कितनी अटेन करता है. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. In this case, the reference conditions which are considered are uy is equal to u sin theta, ay is equal to minus g, and y0 is equal to 0. Y is equal to h, small t is equal to t by 2, and that is equal to previous video मैंने कैपिटल T यानी कि टोटल टाइम टेकन और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करवाया था. एंड इफ़ यू हैवंट रिमेंबर इट देन प्लीज़ रेफर टू योर प्रीवियस पेजेस. उसकी वैल्यू थी 2u sin थीटा बाई जी. कैपिटल टी की वैल्यू 2u sin थीटा बाई जी थी, तो स्मॉल टी दैट इज t बाई 2 दैट बिकम्स इक्वल टू u sin थीटा बाई जी. Again using the same relation that y is equal to y naught plus uyt plus half ayt square, and using the above reference conditions we get y is equal to h, y naught is equal to 0, uy is equal to u sin theta, small t is equal to u sin theta by g plus 1 by 2, ay is equal to minus g into u sin theta by g whole square. And using simple mathematics we will reach at the point that u square sin square theta by g minus u square sin square theta by 2g, that is equal to u square sin square theta by 2g or h, and this h is the maximum height acquired by the object. So maximum height is represented by symbol h. कि maximum height को h symbol से denote किया जाता है, ये दिखाया जाता है. Moving to the next topic. Next thing is what is horizontal range. Horizontal range को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, and it is nothing but the distance covered by the body. It is the distance covered by the body so that when it is moving with a uniform velocity u cos theta, this is u cos theta, in the time equal to time of flight t, कि एक बॉडी जब u cos theta velocity से मूव कर रही है और जो टाइम कि कितने टाइम के लिए मूव करेगी वो कैपिटल t है. अगेन एक बॉडी u cos theta velocity से मूव करती हुई और टोटल टाइम t तक उसने मूवमेंट की, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज R है. यही होता है ना कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो डिस्टेंस है उसी सिंपल फैक्टर पर डिपेंड करता है. इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? It is the horizontal distance covered by the body, or it is simply the distance covered by the body with uniform velocity u cos theta in the time equal to capital T time of flight. कि t टाइम तक उसने ट्रैवल किया u cos theta तक, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है. अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज उसको कैपिटल R से हम लोग डिनोट करते हैं, ये दिखाते हैं, और उसकी वैल्यू होगी u cos theta मल्टीप्लाई बाई t, दैट इज इक्वल टू u cos theta. t की कितनी वैल्यू थी? 2u sin theta बाई g
ये इक्वल बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के। क्यों? बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से वी नो द फॉर्मूलाज ऑफ साइन 2 थीटा एंड द कॉस 2 थीटा। Therefore, the value of r becomes equal to u square sin 2 theta divided by g. Now, what is the value of maximum horizontal range? What is the value of maximum horizontal range? For maximum range, this equation, this is the formula of horizontal range, no? If we want this value to be maximum, then sin 2 theta must be maximum. अगर हमें ये मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है sin 2 थीटा के लिए, अगर किसी तरीके से sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाता है तो ये अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी। अगर किसी तरीके से sin 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर लेता है तो मेरी रेंज R अपने आप मैक्सिमम बन जाएगी। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होगा जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन 90 इज इक्वल टू 1 ना। साइन 2 थीटा मैक्सिमम तब होगा जब 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 होगी। उस केस में रेंज की वैल्यू कितनी बन जाएगी? यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी। सो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई जी होगी। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब 2 थीटा की वैल्यू 90 होती है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हॉरिजॉन्टल रेंज की? यू स्क्वायर बाई जी। ये 2 नहीं है, जी है। दिस इज जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल मोशन इन अ प्लेन। हम जर्नल प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ प्लेन मोशन अंडर को कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने केस किया वो था कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव करती है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ऑल द केस विच वी हैव प्रीवियसली कंसीडर्ड आर फॉर दोज वंस जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव करती है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं वो कंसीडर करनी है हमें। ओके, नाउ when the object is moving with the non-uniform acceleration, let it reach at positions A and B at time t1 and t2 where OA is equal to vector R, this is vector R, and OB is equal to vector R1. डायग्राम से मैं शो कर सकती हूँ, ये मेरे वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा डिस्टेंस आर है, वेक्टर आर है, और ये मेरा डिस्टेंस R1 है, और ये लाइन है जॉइनिंग द टू वेक्टर्स। डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से रहेंगी। दीज आर द इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इन दिस केस। Okay, what is journal motion in the plane? We have an object moving with non-uniform acceleration, and let the positions are A and B at time t and t1 where OA is equal to vector R and OB is equal to vector R1. The displacement is given by vector R. The displacement is given by vector R or vector R1 minus vector R.
द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय वेक्टर आर और ए बी क्या है, r1 माइनस आर के बराबर है, कैसे भी बता देती हूँ मैं। अब बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, यहाँ दिख रहा है भाई ओ ए क्या है, ए बी क्या है, ओ बी क्या है। बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए बी की वैल्यू बन जाएगी ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी मेरा r1 वेक्टर के बराबर है और ओ ए मेरा वेक्टर r के बराबर है। देयरफॉर ए बी बिकम्स इक्वल टू r1 माइनस r। डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर ए बी था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा आर मेरा किसके बराबर होगा, r1 माइनस r के बराबर हो जाएगा, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r। अब अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और x1 y1 है तो क्या होगा, इफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई एंड x1 y1 रिस्पेक्टिवली, देन ए बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हैं और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं। तो वेक्टर आर मेरा, वेक्टर आर जो ओ ए को रिप्रेजेंट करता है वो मेरा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बन जाएगा और वेक्टर r1 जो ओ बी को रिप्रेजेंट करता है वो मेरा x1 आई प्लस y1 जे बन जाएगा। On the similar line, vector r that is equal to r1 minus vector r1 minus vector r becomes equal to x1i plus y1j minus xi plus yj. That can be written as equal to delta xi plus delta yj, where delta x is equal to x1 minus x and delta y is y1 minus y. Therefore, the value of delta r और डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर या वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप के बराबर होगी। अब जैसे किसी वेक्टर का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट किसी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिख रहा है भाई डेल्टा आर वेक्टर लगा हुआ है ऊपर, तो इस डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, x1 माइनस एक्स वैक्टर आई कैप प्लस y1 माइनस वाई वैक्टर जे कैप। आप डेल्टा आर को लिख सकते हैं x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप, यानी कि डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा है मैंने, क्योंकि डेल्टा आर अगेन x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप के बराबर है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर होगा। विद दिस वी आर डन विद द डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट and how or in what way the displacement can be written in the terms of the position coordinates. We are going to continue with this topic in the next video. Again, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, स्टडी हार्ड, डोंट टेक एनी सब्जेक्ट एज वेरी इजी कि भाई इजी है बाद में हो जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड, be regular with the videos. Thank you.